Good evening, beta. So, in this session, we are going to discuss the inequality properties of the definite integral. तो अभी तक हम लोगों ने डेफिनेट इंटीग्रल की बेसिक प्रॉपर्टीज के साथ साथ सिमेट्री की प्रॉपर्टी करी, जिसमें इवन ऑड वगैरह था. फिर इसके बाद में हमने डेफिनेट इंटीग्रल की पीरियोडिक प्रॉपर्टीज टेकअप करी, फिर इन्फिनाइट सम को इवेलुएट करना सीखा. नाउ वी आर मूविंग टू इनइक्वालिटी प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, जिसमें प्रॉपर्टी नंबर 20th से हम स्टार्ट करेंगे. 20th प्रॉपर्टी क्या है, ये लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा बेसिक्स मैंने बताया भी था, इंट्रोड्यूस कर लिया था. 20th प्रॉपर्टी सेज दैट इफ एफ एक्स इज अ पॉजिटिव वैल्यूड फंक्शन in the interval AB, that means fx is greater than equal to 0 for all x belongs to AB, then its integral's value a to b fx dx will also be greater than equal to 0. When I say x belongs to AB, means a is smaller, b is larger. So lower limit is smaller, upper limit is larger, and therefore dx will be positive. X final will be larger than x initial always when you travel from A to B. And fx is positive. So the reason, the explanation for this property is simply that if fx is greater than equal to 0, which is given, and as a is less than b, therefore dx is always positive. Therefore the product of fx and dx will be positive. That means all differential elements which are to be summed by this process of integration are positive, means non-negative. So summation of infinite many infinitesimals will be positive because each and every infinitesimal is non-negative, and therefore a to b fx dx will be either 0 or greater than 0. So 20th property is simple. Now let's move to 21st property. It is known as dominance rule. It says that if the function fx, the value of the function fx dominates the value of function gx, means fx is greater than gx, then the integral of fx will also dominate integral of gx. If fx is greater than gx for all x belongs to AB, means the graph of fx is laid above the graph of gx, then the value of integral a to b fx dx will also be greater than a to b integral gx dx. और इसको भी हम लोग ग्राफिकली भी प्रूव कर सकते हैं और पिछली प्रॉपर्टी 20th प्रॉपर्टी के रेफरेंस से प्रूव कर सकते हैं. 20th प्रॉपर्टी से कैसे रेफर करेंगे, देखो एफ एक्स जी एक्स से बड़ा है तो एफ एक्स माइनस जी एक्स पॉजिटिव है. पॉजिटिव वैल्यू का इंटीग्रल भी पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव फंक्शन का इंटीग्रल पॉजिटिव होता है बाय प्रॉपर्टी 20. सो इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स माइनस जी एक्स ए टू बी विल बी पॉजिटिव. Now integral distributes on difference, so it is integral a to b fx dx minus integral a to b gx dx, positive है. Taking this to right hand side, integral a to b fx dx will be greater than integral a to b gx dx. And this can be also observed by graphically, that if fx is greater than gx, this means graph of fx is placed above the graph of gx. So this is the graph of fx, whereas the lower one is the graph of gx. Now integral of fx represent the area of function fx enclosed between curve and x axis from x equal to a to x equal to b. तो जो पिंक शेडेड एरिया है ये fx dx इंटीग्रल की वैल्यू है, वेयर एज gx फंक्शन की जो एरिया एनक्लोज्ड है विद x एक्सेस बिटवीन x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b, ये जो डॉटेड एरिया है ये gx की एरिया है. तो नेचुरली जो पिंक शेडेड एरिया है वो डॉटेड एरिया से बड़ी है, मतलब इंटीग्रल a टू b fx dx की वैल्यू जो है वो इंटीग्रल a टू b gx dx से बड़ी है. ये एरिया जो है वो इंटीग्रल a टू b fx dx को रिप्रेजेंट करती है, वेयर एज जो दूसरी एरिया है वो इंटीग्रल a टू b gx dx को रिप्रेजेंट करती है. तो ये बात भी पूरी तरह से समझ में आ रही है, ठीक है. इक्वालिटी कब होल्ड करेगी, तो यहां पर इक्वालिटी भी हो सकती है,
ग्रेटर है तो नहीं होगी, अगर यहाँ इक्वालिटी होगी तो यहाँ भी इक्वालिटी होल्ड कर सकती है, बट कंडीशन ऑफ इक्वालिटी कब होगी, तो इक्वालिटी विल होल्ड if and only if either fx and gx become identical function for all x belongs to ab or a become equal to b। क्योंकि अगर a और b इक्वल हो जाए तो विड्थ ऑफ इंटरवल ही जीरो हो जाएगी, तो दोनों फंक्शन की एरिया क्या हो जाएगी, जीरो ही हो जाएगी। तो ये इक्वालिटी की कंडीशन है, अपने आप को दिमाग में रखनी है। देन प्रॉपर्टी नंबर 21 का जो बी पार्ट है, ये इसी प्रॉपर्टी का एक एप्लीकेशन है, डोमिनेंस रूल का एप्लीकेशन है कि टू कंपेयर थ्री फंक्शन एफ जी एंड एच, if we find that fx is less than gx and gx is less than hx, then their integrals will also follow the same order, means integral a to b gx dx will be less than equal to integral a to b fx dx will be less than equal to integral a to b hx dx। और प्रूफ जो है प्रॉपर्टी 21a से भी प्रूफ हो जाएगा, और इसका जो बेसिक एप्लीकेशन है वो क्यों इसको हम लोग कर रहे हैं, तो इस प्रॉपर्टी की हेल्प से हम एक किसी इंटीग्रल की वैल्यू, मीन्स अगर एफ एक्स नॉन इंटीग्रेबल फंक्शन हो तो इसकी इंटीग्रल की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं। कैसे, तो ये प्रॉपर्टी बोलती है कि टू प्रूव दैट सम इंटीग्रल a to b fx dx lies between k1 and k2, अगर ऐसा कोई हमें क्वेश्चन मिलता है, शो दैट इंटीग्रल a to b fx dx lies between k1 and k2, then what do? We will try to find two functions gx and hx such that integral a to b gx dx is greater or equal to k1 and integral a to b hx dx will be less or equal to k2, and then prove that fx lies between gx and hx। तो हम फंक्शन को कंपेयर करना जानते हैं कैलकुलस का यूज करके, तो हम ये प्रूफ कर देंगे। जैसे ही हम ये प्रूफ करेंगे, द मोमेंट वी आर डन विद दिस प्रूफ, जैसे हमने ये एस्टेब्लिश किया तो क्या हो जाएगा, प्रूविंग दिस का मतलब क्या हुआ, प्रूविंग दिस इनइक्वालिटी मीन्स हम प्रूव कर रहे हैं कि a to b gx dx is less than a to b fx dx using dominance rule, less than a to b hx dx। हमने ये प्रूफ कर दिया, और ये प्रूफ करने का मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया, ये प्रूफ करने का मतलब हमने प्रूफ कर दिया कि भाई ये पहले ही हम जानते हैं कि ये जो है ये k1 से बड़ा है, तो दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू k1, और ये जो है वो k2 से छोटा है, तो दिस इज लेस देन इक्वल टू k2, and therefore the result is proof that integral a to b fx dx जो है हमारा वो k2 से लेस है और k1 से ग्रेटर है। ये प्रूफ हो गया। तो ये प्रोसीजर है कि हम कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे हम शो करेंगे कि कोई पर्टिकुलर इंटीग्रल जो है वो किस इंटरवल में लाई कर रहा है। ठीक है, यहां पर थोड़ा इस डायग्राम पर ऑर्डर ऑफ फंक्शन रॉन्गली प्रेजेंटेड है, इसको मैं सही कर दे रहा हूं। तो सबसे जो लोअर फंक्शन है वो तुम्हारा gx है, स्मॉलेस्ट वन ये gx, और जो सबसे अपर फंक्शन है
वो तुम्हारा पता ही है क्या है। सबसे छोटा जो है y इक्वल टू जी एक्स है, मिडिल वाला y इक्वल टू एफ एक्स है, सबसे बड़ा वाला y इक्वल टू एच एक्स है। ठीक है जी। तो 21st प्रॉपर्टी, अब ये सारी प्रॉपर्टी हम लोग जो है प्रॉब्लम सेशन में इस पर क्वेश्चंस कैसे करेंगे वो देखेंगे। अभी हम लोग सिर्फ समझ रहे हैं कि कैसे करेंगे। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूं, दैट वी नो that 1 upon x to the power 1 plus x to the power 5, ये फंक्शन इट इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। ये फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, और डिक्रीजिंग फंक्शन है क्यों? क्योंकि x टू द पावर 5 इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो डिनोमिनेटर इंक्रीज कर रहा है, तो ये फंक्शन डिक्रीज कर रहा है। अच्छा जी, 0 पर इसकी वैल्यू 1 है और 2 पर इसकी वैल्यू 1/33 है। तो मैं ये जानता हूं कि 1 upon 1 plus x to the power 5 lies between 1/33 to 1 if x belongs to 0 to 2, and therefore I would say that integral a to b 1 upon 1 plus x to the power 5 dx की वैल्यू इंटीग्रल 1 dx 0 to 2 और इंटीग्रल 1 dx 1/33 0 से 2 में लाई करेगी। मतलब ये जो इंटीग्रल a टू b नहीं, रादर इसको हम बोल रहे हैं क्या, 0 to 2। अब देखो ये इंटीग्रल इवेल्यूट करना इतना आसान नहीं है, टफ टास्क है, बट हम इसकी वैल्यू को तो अप्रॉक्सीमेट कर पा रहे हैं ना। क्या कि ये तो आ जाएगा 1/33 से और ये 2 के बीच में लाई कर रही है। तो ये एक तरह का एक टास्क है जो हम लोग अचीव करेंगे इससे। किसी इंटीग्रल की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना, ऑल्दो वी आर नॉट गोइंग टू इंटीग्रेट इट, इसका इंटीग्रल का वैल्यू हमें नहीं पता है या हम उसको निकालना नहीं चाहते हैं, बट उसको हम बताना चाहते हैं। ऑप्शन में मान लिया कि यहां से यहां लाई कर रहा है, यहां से यहां लाई कर रहा है, हाउ डू वी फिगर आउट दैट, राइट, कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। देन लेट्स गो टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी। Property number 22 says that integral a to b fx dx mod is less than equal to integral a to b mod fx dx। मतलब पहले इंटीग्रेट करो फिर मॉड लो, या पहले मॉड लेके इंटीग्रेट करो। तो जब आप पहले मॉड लेके इंटीग्रेट करते हैं, देखो इंटीग्रेशन मतलब समेशन होता है, मैग्नीट्यूड ले करके सम करना मतलब पॉजिटिव बना के सम करना, मतलब वो कंस्ट्रक्टिव एडिशन है। और सम ले एडिशन करके मैग्नीट्यूड लेने का मतलब है कि हमने भाई ऐड कर दिया क्वांटिटीज को, जो पॉजिटिव है जो पॉजिटिव सम हो गई, जो नेगेटिव हो सब्ट्रैक्ट हो गई, तो वहां डिस्ट्रक्शन भी हो रहा होगा, और फिर हमने मॉड लिया और पॉजिटिव वैल्यू रिपोर्ट कर दी। तो डेफिनेटली ये कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव दोनों हो सकता है, बट ये तो कंस्ट्रक्टिव होगा, इसलिए ये हमेशा बड़ा होगा इससे। ट्रायंगल इनइक्वालिटी जैसा है। ठीक है, इसका प्रूफ भी बहुत सिंपल है, वन लाइनर है। प्रूफ ये है कि जनरलाइज फॉर्म ऑफ पॉलीगन इनइक्वालिटी या ट्रायंगल इनइक्वालिटी का ही एक वर्जन है। जैसे अगर मैं ऐसा बोलूं कि मान लो ये फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, ऑब्वियसली कुछ वैल्यूड फंक्शन की नेगेटिव है इस इंटरवल में, कुछ पॉजिटिव है ए टू बी में। व्हेन आई से व्हाट इज एलएचएस, लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू क्या आएगी, तो आप बोलोगे लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी वो मैग्नीट्यूड ऑफ ये तीनों a1 प्लस a3 माइनस a2 होगा, क्योंकि ये वाले इंटीग्रल जो मान लो ये c है d है, तो c से d इंटीग्रल की जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव ऑफ एरिया के इक्वल होगी, और a से c पॉजिटिव एरिया a1 के इक्वल होगी, और d से b
पॉजिटिव एरिया A3 के इक्वल होगी। इसका मतलब है कि LHS जो होगा वो होगा मॉड ऑफ A1 माइनस A2 प्लस A3, वेयर एज RHS जो है जब इसका हम मॉड ले लेंगे तो ये नीचे वाला फंक्शन भी रिफ्लेक्ट होकर ऊपर चला जाएगा, तो हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3। तो ऑब्वियस सी बात है कि मॉड A1 माइनस A2 प्लस A3 इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू A1 प्लस A2 प्लस A3, क्योंकि यहां डिस्ट्रैक्शन हो गया तो कुछ एरिया कम हो जाएगी। इसको प्रूफ करने के दूसरे तरीके भी हैं। हमें ये प्रूफ करने के लिए हम ये भी बोल सकते हैं कि जो फंक्शन का मॉड होता है वो हमेशा फंक्शन से बड़ा या इक्वल होता है। ठीक है, तो बेसिकली यहां पर देखो तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉलीगन इनइक्वालिटी मैंने क्यों बोला, क्योंकि ये है समेशंस का मॉड ऑफ समेशन और ये समेशन ऑफ मॉड है, तो दैट्स व्हाई आई से दैट इट इज ट्रायंगल इनइक्वालिटी का जनरलाइजेशन है। दूसरा तरीका है कि हम ये तो जानते ही हैं कि एफ एक्स जो है वो मॉड एफ एक्स से लेस या इक्वल होगा। कोई भी फंक्शन, कोई भी वैल्यू, कोई भी नंबर अपने मैग्नीट्यूड से बड़ी नहीं हो सकती, या तो उसके इक्वल होगी, अगर पॉजिटिव एफ एक्स है तो इक्वल हो जाएगा और नेगेटिव है तो छोटा होगा। देयरफॉर आई विल से दैट एफ एक्स जो है एक्चुअली मॉड एफ एक्स से छोटा और माइनस ऑफ मॉड एफ एक्स से बड़ा होगा, एंड देयरफॉर डोमिनेंस रूल लगाएंगे तो हम क्या बोलेंगे कि माइनस ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल टू ए टू बी मॉड एफ एक्स डी एक्स होगा। अब मॉड एफ एक्स डी एक्स मान लो कोई नंबर है के, मॉड एफ एक्स डी एक्स ए टू बी इंटीग्रल जो है इसको मान लिया हम के है। इसका मतलब हम बोल रहे हैं कि ये जो इंटीग्रल की वैल्यू है ए टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस के से के लाई कर रही है। जब कोई रियल नंबर माइनस के से के लाई करती है मतलब उसका मैग्नीट्यूड के से छोटा होगा। तो हमने बोला कि देयरफॉर मॉड ऑफ एफ एक्स mod of integral a to b fx dx will be less than equal to k that is a to b fx dx। तो सिंपल है, मैंने सिर्फ ये बोला कि मान लो ये नंबर k है, फिर आप बोल रहे हो कि एक नंबर fx है a to b fx dx और वो माइनस k से k के बीच में लाई कर रहा है। तो आप जानते ही हो ना कि जब आप बोलते हो कि x बिलोंग्स टू माइनस k टू k, इसका मतलब होता है मॉड ऑफ x इज लेस देन k। यही बात यहां इस्तेमाल हुई, दैट्स इट। तो ये प्रॉपर्टी भी यूजफुल प्रॉपर्टी है, तो प्रॉपर्टी नंबर 22 इसको भी समझ लो, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं। फिर आते हैं प्रॉपर्टी नंबर 23 पर। ये सभी प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं से इनइक्वालिटी से रिलेटेड है। कोई भी इनइक्वालिटी इन्वॉल्विंग द इंटीग्रल अगर हम वर्क कर रहे होंगे तो हम में से इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी हमें नहीं पता होगा, वहीं पर सोचना पड़ेगा। फर्स्ट यू शुड नो व्हाट आर दीज प्रॉपर्टीज एंड देन यू विल बी एबल टू अप्लाई देम, राइट। तो ये प्रॉपर्टी बोलते हैं कि स्मॉल एम एंड कैपिटल एम आर द रिस्पेक्टिवली ग्लोबल मिनिमम एंड ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन इन द इंटरवल ए बी। मतलब एक फंक्शन है एफ एक्स, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ए टू बी इंटरवल में, तो ऑब्वियसली बाउंडेड होगा। बाउंडेड होगा तो उस इंटरवल में उस फंक्शन की कोई लीस्ट वैल्यू होगी, मान लो स्मॉल एम है। कोई ग्रेटेस्ट वैल्यू भी फंक्शन अटेन करेगा, मान लो कैपिटल एम है। तो इसका मतलब है कि जो फंक्शन है वो स्मॉल एम से कैपिटल एम में लाई करेगा। तो a टू बी एफ एक्स डी एक्स की जो वैल्यू है वो m टाइम्स b माइनस ए टू कैपिटल M टाइम्स b माइनस ए होगी। दिस इज द प्रॉपर्टी असर्ट्स। अब ये असर्शन का प्रूफ क्या है, तो प्रूफ बहुत सिंपल है। प्रूफ ये है बेटा कि एज यू नो दैट एफ एक्स लाइज बिटवीन स्मॉल m एंड कैपिटल M, so using dominance rule integral a to b small m dx will be less than equal to integral a to b fx dx will be less than equal to integral a to b capital M dx, and therefore the proof m times m तो कॉमन आ जाएगा, 1 dx x है a to b, और ये हो जाएगा m टाइम्स इंटीग्रल 1 dx a to b, वही बात है।
फाइनली आ गया तुम्हारा b माइनस ए टाइम्स स्मॉल m इज लेस देन इक्वल टू इंटीग्रल a टू b f of x dx which is less than equal to capital M times b minus a and that was the result. यही प्रूफ करना था आपको, तो इसमें नथिंग, नॉट अ बिग डील, नथिंग डूइंग, सिंपल है। ग्राफिकली भी समझ सकते हो, तो ग्राफिकली इसका क्या है अंडरस्टैंडिंग वो देखो। अगर कोई ऐसा फंक्शन है ए बी इंटरवल में, ये मिनिमम वैल्यू फंक्शन की स्मॉल एम, ये मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की है कैपिटल एम, तो कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए, बी माइनस ए ये लेंथ ऑफ इंटरवल है, बेस है, और कैपिटल एम हाइट है, तो कैपिटल एम इंटू बी माइनस ए ये बड़े वाले पिंक कलर से शेडेड रेक्टेंगल की एरिया होगी, और स्मॉल एम इंटू बी माइनस ए ये डॉट से शेडेड रेक्टेंगल की एरिया होगी, और ये जो वर्टिकल डॉटेड लाइन से शेडेड है वो एक्चुअल इंटीग्रल की वैल्यू है। तो क्लियर सी बात है कि ऑर्डर आपके सामने है कि नहीं। ये जो इंटीग्रल है ये क्या है, ये है स्मॉल m इंटू बी माइनस ये वाली एरिया है, और ये वाली एरिया इंटीग्रल a टू बी एफ एक्स डी एक्स की कॉरस्पॉन्डिंग एरिया है, और ये वैल्यू है, उसकी वैल्यू है, और ये क्या है कैपिटल M इंटू बी माइनस। तो ग्राफिकली प्रूफ हो गया, एनालिटिकली भी प्रूफ हो गया। फिर आते हैं हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 24। अभी तक जो भी प्रॉपर्टीज हैं ये बेस्ड हैं किस पर, जस्ट मैक्स मिन वैल्यू, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, इस पर बेस्ड है ना, डोमिनेंस पे। प्रॉपर्टी 24 इज अ प्रॉपर्टी which is based on the curvature. If the function fx increases and has a concave graph, अगर फंक्शन fx इंक्रीज कर रहा है और उसका ग्राफ कनकेव है, कनकेव अपवर्ड है, मतलब fx पॉजिटिव है, नहीं f डैश x पॉजिटिव है और f डबल डैश x भी पॉजिटिव है, तो ऐसे केस में फंक्शन का ग्राफ कुछ ऐसा होगा। मान लो ऐसा ग्राफ है, ऐसा। अब हमने फंक्शन पे दो वैल्यू ले ली, एक ले लिया a और एक ले लिया b। तो अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं, तो मैं आपको जो दिखा रहा हूं उसको ध्यान से देखो। ये पॉइंट हुआ a कॉमा एफ ए, और ये पॉइंट हो गया तुम्हारा b कॉमा एफ बी, इजंट इट। ये हाइट एफ ए हुई, ये पूरी हाइट एफ बी हो गई, तो दिस इज एफ बी कंप्लीट एंड दिस इज एफ ए कंप्लीट। मीन्स कंप्लीट मीन्स ये टोटल हाइट की बात कर रहा हूं मैं, और यहां पर हम ये टोटल हाइट की बात कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक। तो आई एम टॉकिंग ऑफ टू एरियाज, वन एरिया इज this one, ये वाली एरिया की बात कर रहे हैं। ये एरिया क्या है, तो डेफिनेटली ये एरिया है एफ ए इंटू बी माइनस ए, एंड आई एम टॉकिंग ऑफ दिस एरिया। ये एरिया क्या है, ये एक्चुअल इंटीग्रल की वैल्यू है। इंटीग्रल ए टू बी एफ एक्स डी एक्स है, और ये जो लिखा था ये एरिया बेसिकली जो है वो आपकी
शेडेड एरिया दिस थी, है ना। ये और एक एरिया और मैं दिखा रहा हूं, ये वाली एरिया एक ट्रेपेजियम है, और ये एरिया क्या होगी साहब, ये वाली एरिया, ये एरिया जो होगी ये होगी समेशन ऑफ पैरेलल साइड एफ ऑफ ए प्लस एफ ऑफ बी बाई 2 इंटू बी माइनस ए। और आप जानते हो कि ऑर्डर इनका क्लियर ऐसा है ना। तो व्हाट आई कैन सी बाय कंपेयरिंग दीज थ्री एरियाज दैट द लीस्ट एरिया इज एफ ए इंटू बी माइनस ए, एंड इससे बड़ी होगी इंटीग्रल की वैल्यू ए टू बी एफ एक्स डी एक्स, और इससे भी बड़ी होगी ट्रेपेजियम की एरिया दैट इज एफ ए प्लस एफ बी अपॉन 2 इंटू बी माइनस ए। एंड इसको ग्राफिकली समझना सबसे आसान है। प्रूफ करना चाहोगे एनालिटिकली तो आपको बोलना पड़ेगा कि मिनिमम वैल्यू ये है एफ ए, तो हम बोलेंगे कि एफ एक्स हमेशा अपनी मिनिमम वैल्यू से उस इंटरवल में बड़ा ही होगा, और ये जो कॉर्ड है इससे छोटा होगा। ये कॉर्ड का इक्वेशन हमें लिखना पड़ेगा। मान लो ये जी एक्स है, कॉर्ड का इक्वेशन लाइन होगा ना, तो जी एक्स से छोटा होगा, फिर इंटीग्रेट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चाहे जैसे करो, बेसिकली है कि ये कनकेव अपवर्ड है, ऐसा हो गया। अगर कनकेव डाउनवर्ड होगा तो ट्रेपेजियम जो है वो नीचे के साइड बनेगा, और उसके वो प्रॉपर्टी भी मैं लिख दे रहा हूँ, अपने आप प्रूफ कर देंगे। तो ठीक है, तो ये समझ में आ गया साहब, ये बात समझ में आ गई, बिल्कुल क्लियर है। 24th का ए पार्ट हो गया। ऐसे 24th का बी पार्ट भी देख लो, 24th का बी पार्ट। कहने का मतलब यहां देखो, मैं बता रहा हूं कि जब हम लोग डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम कर रहे थे तो हम अपर एंड लोअर दो रेक्टेंगल बना रहे थे, है ना। जब हमने ये वाली प्रॉपर्टी करी तो भी यही किया, एक लीस्ट और एक ग्रेटेस्ट से दो रेक्टेंगल बना दिया, और हम बोलते थे कि इंटीग्रल की वैल्यू जो है इन दोनों के बीच में होगी। तो ये अच्छा अप्रोक्सीमेशन नहीं है। डेफिनेटली जब हमने एक ट्रेपेजियम ले लिया ये, तो इतनी जो एरर है उसको मिनिमाइज कर लिया। ये वाली जो एरर थी ना, ये पूरी एरर थी, ये अननेसेसरी था, इसको हटा दिया। तो डेफिनेटली ट्रेपेजियम के एरिया ये बड़े वाले रेक्टेंगल के एरिया से काफी कम है, और इट इज मोर टूवर्ड्स द एक्चुअल एरिया। ठीक है, ऐसे ही ये प्रोसेस को और बेटर कर सकते हैं कि यहाँ नीचे वाले ये वाले जो है ना, ये भी बड़ा क्रूड सा अप्रोक्सीमेशन है। ये जब ये रेक्टेंगल ले रहे हैं तो अगर इसी का दो पार्ट कर दो ऐसे, है ना, और ये वाली एरिया ले लो, तो ये एक्चुअल एरिया इंटीग्रल की वैल्यू के और क्लोज हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप चाहो तो यहां पर भी मिडिल से दो, एक ट्रेपेजियम ऐसे बना दो और एक ट्रेपेजियम ऐसे बना दो, और यहां पर भी चार पार्ट कर दो, और ये इतना और क्लोज हो जाएगा, इतना और क्लोज हो जाएगा। तो अब आपकी जो एरिया आएगी वो इट इज मच क्लोजर टू द एक्चुअल एरिया। तो यू कैन डिवाइड दिस एरिया इनटू ट्रेपेजियम्स, और फिर उन सारे ट्रेपेजियम के एरिया को सम करके भी आंसर आएगा। उसी को ट्रेपेजॉइडल रूल बोलते हैं। आगे न्यूमेरिकल मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में बीटेक में आप करेंगे कि कोई भी फंक्शन है ऐसे, तो उसको हम ऐसे ट्रेपेजियम्स फॉर्म कर लेते हैं। ऐसे रेक्टेंगुलर अप्रोक्सीमेशन नहीं करते हैं, रेक्टेंगल्स नहीं बनाते हैं, हम ऐसे ट्रेपेजियम्स बना देते हैं। तो जो कैलकुलेटर वगैरह डिजाइन होता है वो हमेशा ट्रेपेजॉइडल रूल से डिजाइन होता है। ऐसे तो ये ट्रेपेजियम्स की एरिया करो अगर आप, तो आपको लगता नहीं कि रेक्टेंगुलर अप्रोक्सीमेशन से बहुत बेटर है ना। दीज ट्रेपेजियम्स के एरिया का सम एक्चुअल एरिया के मच क्लोजर होगा, फास्ट कन्वर्ज करेगा, एरर कम होगी इसमें। 24th का जो बी प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी, इफ द फंक्शन एफ एक्स इंक्रीजेस एंड हैज कॉन्वेक्स ग्राफ इन द इंटरवल क्लोज्ड ए बी,
that means f dash x is positive and f double dash x is negative, then what will happen? Then this will hold good. B minus a into fa plus fb by 2 will be less than a to b fx dx less than b minus a into fb. क्यों? ग्राफ पे देखो, जब डायग्रामेटिकली ऑब्जर्व करोगे तो कनकेव होगा, तो कनकेव अपवर्ड था, कन्वेक्स मतलब कनकेव डाउनवर्ड है, नीचे की तरफ कनकेव है. अब क्या हुआ कि कॉर्ड को ज्वाइन किया है डीसी, तो ये ट्रेपेजियम नीचे हो गया. और रेक्टेंगल अपर लिमिट के लिए हमें रेक्टेंगल लेना पड़ेगा, बड़े वाले ऑर्डिनेट से अपर रेक्टेंगल ले लिया, तो अपर रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? तो एफ बी इंटू बी माइनस ए. ये देखो एफ बी इंटू बी माइनस ए अपर लिमिट हो गई इंटीग्रल की, और लोअर लिमिट इंटीग्रल की वैल्यू इस ट्रेपेजियम के एरिया से ज्यादा होगी. और ट्रेपेजियम के एरिया क्या होगी? एफ बी प्लस एफ ए बाई 2 इंटू बी माइनस ए. तो कर्वेचर पर बेस करके ये इनइक्वालिटी ऑल्टर करेगी. कनकेव अपवर्ड है तो पहला वाला फॉर्म होगा, कनकेव डाउनवर्ड है तो दूसरा वाला फॉर्म हो गया. सो दिस आर दी 24 प्रॉपर्टीज, फर्स्ट 24 प्रॉपर्टीज जो ऑर्डिनरी लेवल पर इंटीग्रल को अप्रॉक्सीमेट करना, इंटीग्रल की वैल्यू को अप्रॉक्सीमेट करना, इंटीग्रल्स को कंपेयर करना, ये सब चीजों में हम इन प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल करेंगे. ठीक है जी. अब लास्ट एक बात और डिस्कस कर लेते हैं जो थोड़ी डिफरेंट इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टी है. एक इनइक्वालिटी हम लोगों ने अलजेब्रा में हम लोग करते हैं, इसको कॉशीज इनइक्वालिटी बोलते हैं, और उसी इनइक्वालिटी पर बेस्ड है. उसी तरह से कॉशी एंड श्वार्ट्ज ने मिलकर के इस इनइक्वालिटी को डिवाइस किया. तो व्हाट इज कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, वो लिख दो. Cauchy-Schwarz inequality. 25th property is Cauchy-Schwarz inequality. The property Cauchy-Schwarz भी नहीं, Cauchy-Schwarz inequality तो अल्जेब्राइक इनइक्वालिटी है, सेम इनइक्वालिटी पर बेस्ड है ये श्वार्ट्ज-बन्यास्की इनइक्वालिटी. और ये इनइक्वालिटी में है क्या? बेसिकली दिस इनइक्वालिटी सेज दैट fx is a continuous function and gx as well in the interval a to b such that f square x and g square x are integrable. मतलब fx और gx कंटिन्यूअस फंक्शन है और इनके स्क्वेयर्स जो है वो इंटीग्रेबल है. मतलब fx और gx हो सकता है इंटीग्रेबल ना हो, जैसे कि फोर्थ रूट हो जाए किसी फंक्शन का, स्क्वायर रूट हो जाए, है ना. तो समटाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ सम फंक्शन इज नॉट इंटीग्रेबल, बट व्हेन यू स्क्वायर देन द फंक्शन बिकम्स इंटीग्रेबल. तो ऐसा सिचुएशन है. देन द इनइक्वालिटी सेज दैट इंटीग्रल a to b fx into gx dx का मॉड इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ इंटीग्रल a to b f square x dx and integral a to b g square x dx. अब ये कैसे होल्ड करती है ये प्रूफ करना है आपको. ठीक है जी. तो हाउ डू यू प्रूव इट, हाउ डू यू इंटरप्रेट इट, ये सोचो पहले फटाफट कि इसको वैलिड होने का वजह क्या है. तो मैं बोलूंगा कि यहां पर मैं दो इनइक्वालिटीज एक बताऊंगा. एक तो अलजेब्रा वाली इनइक्वालिटी की बात करूंगा कि अगर मैं, ध्यान से देखो, इसको कॉशीज इनइक्वालिटी भी बोलते हैं. ठीक है, ये आपको अलजेब्रा में हेल्प भी करेगी, कॉशीज इनइक्वालिटी. ये इनइक्वालिटी बोलती है कि इफ आई हैव ए के एक्स के का होल स्क्वायर, ए के एक्स के माइनस बी के होल स्क्वायर, it is always greater than equal to 0. We are given AK and BK are real numbers where K varies 1, 2 up to n. मतलब A1, A2, A3, AN, B1, B2, B3, BN कोई भी दो सेट ऑफ रियल नंबर्स हैं. A1 to AN एक सेट ऑफ रियल नंबर है, B1 to BN दूसरी सेट ऑफ रियल नंबर है. तो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, अगर x रियल है तो ये क्वांटिटी रियल है,
और रियल का स्क्वायर हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब यहां से हमें मिलेगा कि ए के स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 times bk into ak into x plus bk square is greater than equal to 0 for all x belongs to real. अब अगर मैं ऐसी बहुत सारी इनइक्वालिटी को ऐड कर देता हूं, मतलब समझ रहे ऐसे कितनी इनइक्वालिटीज हैं, तो k1 है तो a1 x स्क्वायर ऐसा कुछ है, a1 x स्क्वायर माइनस 2 a1 b1 x माइनस b1 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे a2 x स्क्वायर a2 x स्क्वायर a2 स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 2 a2 b2 x माइनस b2 स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसे बहुत सारी हैं। सबको सम कर लिया, ऐड कर लिया, तो मैं ऐड करके क्या आएगा, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ y2 ऐड फिजिकली, तो आ जाएगा सिग्मा ए के स्क्वायर टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सिग्मा ए के बी के टाइम्स एक्स प्लस सिग्मा बी के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के वेरीज 1 to n। अब कोई भी क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव कब होता है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू रियल, तो आप जानते हो जब उसका d लेस देन 0 हो। क्यों? क्योंकि लीडिंग कोएफिशिएंट हमेशा पॉजिटिव है, तो d लेस देन 0 करोगे तो आएगा 4 टाइम्स सिग्मा ए के बी के होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स सिग्मा ए के स्क्वायर इंटू सिग्मा बी के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल लेस देन इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर देना बेटा, तो यहां से एक इनइक्वालिटी प्रूव होगी, a1 b1 प्लस a2 b2 एंड सो ऑन अप टू an bn का स्क्वायर इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर अप टू an स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई b1 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर अप टू bn स्क्वायर। इसको बोलते हैं कॉशीज इनइक्वालिटी या कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बोलते हैं, कॉशी श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी। अब यही इनइक्वालिटी को इंटीग्रल के लिए कैसे डिवाइस किया गया, इसी से ये इनइक्वालिटी डिवाइस हुई है, सेम है, सेम। दो के प्रोडक्ट का सम, कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट का सम का स्क्वायर, यहां देखो स्क्वायर कर दो इसको तो यही आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, समेशन ही तो है दो के प्रोडक्ट का, और ये है स्क्वायर्स का सम, फर्स्ट वाली सेट ऑफ नंबर के स्क्वायर का सम इंटू सेकेंड वाली सेट ऑफ नंबर का स्क्वायर का सम। और इसका प्रूफ क्या है, तो वो प्रूफ भी बिल्कुल ऐसा ही है, तो मैं यहां बोल रहा हूं फटाफट नोट कर लो। तो ये प्रूफ ऐसा कुछ है कि लेट फाई एक्स इज अ फंक्शन एफ एक्स माइनस लैम्डा जी एक्स का होल स्क्वायर, तो ऑब्वियस सी बात है कि फाई एक्स एफ एक्स माइनस लैम्डा जी एक्स होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा फॉर एवरी लैम्डा बिलोंग्स टू रियल, एंड देयरफॉर f स्क्वायर x माइनस 2fx gx इंटू लैम्डा प्लस लैम्डा स्क्वायर g स्क्वायर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। फिर डोमिनेंस रूल लगा दो, इंटीग्रेट कर दो, तो इंटीग्रल ऑफ g स्क्वायर x dx इंटू लैम्डा स्क्वायर माइनस 2 लैम्डा टाइम्स इंटीग्रल ऑफ fx इंटू gx dx प्लस लैम्डा प्लस a टू b f स्क्वायर x dx ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब बिकॉज ये लैम्डा में क्वाड्रेटिक है, ये बात हर एक लैम्डा रियल के लिए ट्रू है, तो ऑब्वियसली d लेस देन 0 होगा, बिकॉज a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू रियल, का मतलब होता है b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन इक्वल टू 0, तो b स्क्वायर से आ जाएगा 4 टाइम्स a टू b fx gx dx का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a टू b g स्क्वायर x dx इंटू a टू b f स्क्वायर x dx लेस देन इक्वल टू 0, 4 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा, और इसके बाद में आप स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड में, तो यहां रूट लेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर इज मॉड एक्स, तो यहां पर आ जाएगा मॉड ऑफ a टू b f x g x dx इज लेस देन इक्वल टू दिस, एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ श्वार्ट्ज-बनियास्की इनइक्वालिटी। तो कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी और श्वार्ट्ज-बनियास्की इनइक्वालिटी, ये दोनों इनइक्वालिटी सेम ही है, एक इंटीग्रल के फॉर्म में है, एक अलजेब्राइक फॉर्म में है,
कॉशी-श्वार्ट्ज क्या है, फिर से मैंने बताया, फॉर एनी सेट ऑफ टू रियल नंबर्स, A1, A2, A3, AN and B1, B2, B3, Bn. We know that summation of the square of the first set of numbers multiplied by summation of the square of the second set of numbers is always greater than equal to summation of the corresponding product k where is 1 to n. तो ये इनइक्वालिटी थी कॉशी-श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी, और ये उसी का इंटीग्रल वर्जन है, दैट्स इट। ठीक है जी। तो इसके अलावा इनइक्वालिटी पर बेस्ड कोई भी फर्दर और कोई प्रॉपर्टी नहीं है डेफिनेट इंटीग्रल की। दीज आर द 25 20th से 25th, मतलब टोटल 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25, तो 6 प्रॉपर्टीज ही हैं जिससे सारी इनइक्वालिटीज गवर्न होंगी। तो आज के इस कॉन्सेप्ट डिस्कशन को यहीं पर क्लोज करते हैं, और इस पर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इन्हीं पर बेस्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। ठीक है।